Hello people, welcome back to my channel. Welcome back to Shiv Astrology. I am astrologer Pankri Verma and today I am going to share my observations with you all when Mars is placed in the 9th house of a natal chart. आज मैं आप सबसे अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी जब मंगल ग्रह कुंडली के नवम भाव में स्थित होते हैं. So let's get started and see how much good and bad effects this placement of Mars gives to such individuals in his or her lifetime. This individual is highly independent, open-minded and loves few things more than the challenge of an intelligent debate, and while they are open-minded they do tend to dismiss too quickly the opinions of others, causing the native to appear cynical or self-righteous, particularly due to their propensity towards bluntness and being too much honest. While some persons admire and are attracted to such trait of these individuals, others are totally turned off by it. Now these individuals are willing to go to great lengths to fight for a cause. Now this person with Mars in their 9th house have a tendency to become fanatical in their beliefs. जो मंगल ग्रह की जो ये स्थिति है, जब वो नवम भाव में स्थित होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बना सकते हैं. आप में क्रोध की मात्रा ज़्यादा होगी. इसी कारण से आप एक अच्छे नेता या फिर एक बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं. ये जो मंगल ग्रह की स्थिति है आपसे मेहनत ज़्यादा करवाती है और लाभ कम देती है. कभी कभी आप में आपके अंदर जेलसी की भावना ज़्यादा होगी, तो आपने जेलस दूसरे लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने भाई बहनों से नहीं होना. आपको उनकी खुशी में खुश होना है. jealous नहीं होना, उदास नहीं होना. Now the native with the Mars placement, this Mars placement loves to travel and new adventures and also welcomes changes in their lives. They are energetic and playful and interesting. A very interesting Mars in 9th house trait is a distinctive laugh. Many times it's like a hearty or a throaty chuckle and a contagious type of laugh which causes others to laugh just by hearing it, and therefore such native does have a wicked sense of humor and is drawn to people who makes them laugh as well. This individual is quite enthusiastic about life with a half full glass of optimism and a witty remark or come back always at the ready. When this native pursues a higher education, they will almost certainly succeed financially or attain some sort of honor because of it. जो मंगल ग्रह की जो ये स्थिति होती है, आपको अपनी लाइफ में आपके फादर की वजह से कुछ अड़चने आपकी लाइफ में आ सकती हैं, परेशानियां आपके लाइफ में आ सकती हैं आपके फादर की वजह से. आपके छोटे भाई बहन का जो स्वभाव होगा वो रूखा हो सकता है, वो गुस्से वाले हो सकते हैं. आपको आपकी लाइफ टाइम में लिटिगेशंस इश्यूज ज़रूर आएंगे, चाहे छोटे हों चाहे बहुत बड़े हों, तो ये ज़रूर आएंगे. नोटिस करिएगा. और आप अपनी आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक है तो ये ध्यान रखिए कि आपको लंबी या फिर समुद्री यात्रा या फिर समुद्र पार यात्राएं आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई हैं. आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका छोटा फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज़्यादा प्रिय होंगे. Now with natal Mars in the 9th house, such person loves a good debate and can argue with someone over any opinion. Now he or she defends their beliefs well, but need to watch for being overly preachy or aggressive about it. There's so much fun to be had and they don't want to focus on the serious matters at all. Their energy is for acquiring new knowledge and having new experiences that broaden their mind so they can teach others also, and for being as free as possible. Such natives aggressively defend their views on the world and they want to fight for truth and may quite possibly aggressively because of this pursue a degree in higher education. Now watch out for legal concerns or people attacking you in legal matters. There is some connection between Mars being god of war and 9th house being a house of legal matters. Okay, मंगल ग्रह की नवम भाव में स्थिति की वजह से आपको आपके जो भाइयों की संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है और आप एक पराक्रमी व्यक्ति कहलाएंगे. आपको एक एडवाइस मैं देना चाहती हूँ ऐसे जातकों को
सोना, गोल्ड नहीं बेचना चाहिए, और स्पेशली वो गोल्ड जो उनके घर में है, ठीक है। ये इनको नहीं, आपको सेल नहीं करना चाहिए। दिस इज़ एडवाइस। मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो योर विश। अच्छा, अब जो एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर ऐसे नेटिव्स अपना माइंड, रिलीजियस माइंड रखेंगे, पाठ पूजा करेंगे और भगवान की तरफ उनकी श्रद्धा होगी, आई मीन वो रिलीजियस होंगे अगर नेचर में, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम दे सकता है। तो आप मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, डोनेशंस करिए, ये आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। सो दीज वर my observations when Mars is placed in the 9th house of a natal chart. This was my analysis when Mars is in the 9th house of a horoscope. होप है आपको बहुत कुछ अपने बारे में नया जानने को मिला होगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्द से जल्द जाइए, मेरी सारी पुरानी वीडियोस देखिए, नीचे प्लेलिस्ट में देखिए। आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेशंस कैसे हैं, आपके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स कितने हैं, और बहुत कुछ जो मैंने अपनी वीडियोज़ में, पुरानी वीडियोज़ में बताया है, आपको अपने ही बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर पर बनाना है और उसमें प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, कौन से हाउसेस में बैठे हैं, उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस देखनी है और फिर मेरी वीडियोस से उनको कंपेयर करना है। और फिर देखिएगा कि आपको अपने ही बारे में कुछ ना कुछ नया ज़रूर जानने को मिलेगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जल्दी जाइए और भागकर सारी वीडियोस देखिए। आपको मेरी वीडियोस में, मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस में अपने दुखों का कारण और निवारण दोनों मिल जाएगा। यदि फिर भी आप मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरे नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मेरी वेबसाइट पर, जो कि है www.astrologerpankhurivarma.com, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशंस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट पे आप मेरे रीसेंट पोस्ट पढ़ सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, उन पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे रीसेंट पोस्ट तो मेरी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा, दैट इज़ www.astrologerpankhurivarma.com। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऑन यूट्यूब। मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप जल्द से जल्द देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपसे अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी वो 10th हाउस और मार्स के बारे में शेयर करूंगी, यानी जब मंगल ग्रह 10th भाव में 10th हाउस में स्थित हो जाते हैं तो कैसे इफेक्ट्स देते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।